सर रिकॉर्डिंग के लिए भी आपको दे दिया एक्सेस। ठीक है, मैंने डाल दिया रिकॉर्डिंग का इसका। ठीक है सर। Okay, gentlemen, we were discussing this question, example number 3. We are to find the slope of this parabola at the point 24, and we are using the definition of the derivative secant line को हम tangent line में change कर रहे हैं. The formula is f of x1 plus h minus of f x1 and whole square. This is the formula which we have discussed above. So putting these values, the slope is coming to be 4. Now the point is 2, 4. This is given to you. This point, note down. Point is with you and the slope is with you now. And then what is the formula for the equation of the slope, equation of the tangent line? That is y minus y1 equal to m into x minus x1. So x1, y1, this is 2, 4, which is the given point. And m you have calculated as 4. This is the slope. Insert all these three values. So y minus y1 is 4, m is 4, x minus, for x1 the value is 2. Just open the brackets, y minus 4, 4x minus 8, and y will be equal to, just bring this minus 4 to this side. This will become plus 4, so minus 8 plus 4 will be minus 4. So 4x minus 4. This is the required equation of the tangent line. So you should know how to calculate the slope first, and then how to find the equation of the tangent line. Remember this formula. This is known as point slope form of the straight line. This is the tangent line also. And you will do some more questions of this type in the exercise. Okay. Switching over to the exercise 2.1. In exercise 126, find the average rate of change of the function over the given intervals. My function in question number 1 is fx equal to x cube plus 1. 2 points have been given, a part and b part. In a part 2, 3, and in b part minus 1 and 1. See, I'm doing both of the two parts for you. आप एक क्वेश्चन को ठीक से समझ लीजिए. अब अगर किसी को समझ नहीं आएगा तो इसके बाद आप पूछ लीजिएगा. ओके. f of x, x cube plus 1. Let the given interval is x1, x2, 2, 3. ये है पहला वाला a part. हमने x1 को 2 रख लिया, x2 को 3 रखा. Formula we use करेंगे. Then using a formula for the average rate of change, we get delta y upon delta x. क्या होता है? f of x2 minus of x1 upon x2 minus x1. तो x2 ये हमारा और ये x1 है. x2 को यहाँ रखिए फंक्शन के अंदर. तो ये हो जाएगा, पहले होगा f3 minus x1. x1 is 2. ठीक है, x1 की जगह 2, 3 minus 2. अब कैलकुलेट कीजिए f3. यहाँ पे x को क्या रखना है हम? 3. 3 की पावर 3 plus 1. 3 की पावर 3 is 27 plus 1 28. and f2 निकालेंगे जी. f2 यानी ये पहले पॉइंट पर. तो ये होगा 2 की पावर 3 plus 1, that is 8 plus 1 9. तो यहाँ पुट कर दिए वैल्यूज को. f3 का आंसर है 28, f2 का आंसर है 9. 28 minus 9 और डिफरेंस क्या आएगा? 3 minus 2 का 1. The answer is coming to be 19. This is the average rate of change over this interval. Damn simple, कोई मसला नहीं. इस फॉर्मूले को पुट कीजिए. x2 आपका सेकंड पॉइंट, x1 आपका पहला पॉइंट. इसमें रख के वैल्यूज रख दीजिए ऊपर और नीचे इन दोनों का डिफरेंस डाल दीजिए. सेम गोस टू नेक्स्ट केस. देखिए x1 हमारा है -1 और x2 क्या हमारा 1. अब आप निकालें f of x1. इन x की जगह f of ये क्या हमारा -1. पुट कीजिए -1 की पावर 3 plus 1. आंसर आ गया 0, क्योंकि -1 का क्यूब विल रिमेन -1. -1 plus 0 is 0, plus 1 is 0. yes. x2 हमारा 1 है. 1 रखेंगे, 1 का क्यूब विल रिमेन 1. 1 plus 1 is 2. f of x2 is 2. तो ऊपर आ गया हमारे पास 2 minus 1 और नीचे क्या होगा 1 फिर माइनस और फिर -1. ओके, 1 माइनस -1 क्या x2 माइनस टाइम्स और फिर -1 इसलिए कि आपका वैल्यू है x1 के -1. So denominator is coming to be 2. तो 2 over 2 कैंसिल होके क्या आ गया 1. That's it. Anything difficult? जी
लिसनिंग माय वॉइस? कोई सवाल पूछना हो तो पूछे। नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, एच टी। देखिए फंक्शन हम हमेशा ये नहीं होगा एफ से लिखें, एफ लिखें, जी लिखें, एच लिखें। दिस डिफरेंट letters can be used to denote a function. Now this function is of t depending upon t. T is the independent variable. ht is cos t and interval is pi by 4 comma 3 pi by 4. तो t1 हमारा क्या होगा, टाइम pi by 4, t2 क्या होगा 3 pi by 4. ht1 हम t1 की वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, तो cos pi by 4 हो जाएगा। t1 की वैल्यू क्या है pi by 4, cos pi by 4 होता है 1 by √2। ht2 निकालेंगे अब सेकंड पॉइंट पर, तो सेकंड पॉइंट पुट कीजिए cos ऑफ 3 pi by 4, ये हो जाता है -1 by √2। यू कैन सी योर फ्रॉम योर कैलकुलेटर्स। ओके, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। देखो ये होगा डेल्टा एच यहाँ पे लेफ्ट में, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इट्स टी, सो यू विल राइट इन द डिनोमिनेटर डेल्टा टी। The formula will become ht2 minus ht1 upon t2 minus t1। वही एवरेज, जैसे वहां पे लिखा था हमने f x2 minus f x1 और x2 minus x1, सेम you can change according to the given function। जैसा भी है, if dependent variable और t is the independent variable। पुट कर दीजिए वैल्यूज, ht2 की वैल्यू है -1 upon √2 माइनस टाइम्स t1 का आंसर आ रहा है 1 over √2 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। ठीक है, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है -2 upon √2 और 3 pi by 4 minus pi by 4, ये बचेगा आपके पास pi by 2। 2 pi by 2 हो जाएगा ना, 2 pi by 4, तो 2 pi by 4 से 2 कैंसिल करें, pi by 2 माइनस √2, इसको हम कैंसिल करें अगर, दिस 2 कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स इन द अंडर रूट साइन। ठीक है, एक अंडर रूट कट गया, √2 बच गया, pi by 2, ये 2 नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2 √2 अपॉन pi, दिस इज dh अपॉन dt। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, सेम गोज इन दिस, इसका भी निकालिए एवरेज रेट ऑफ चेंज। आर थीटा, अब देखिए मैंने कहा था ना एच होगा, आर होगा, कुछ भी हो सकता है। अब आपका ये है आपका θ1 और ये थीटा। देखिए राइट साइड पे आपके पास क्या है, थीटा इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो पहला θ1 की वैल्यू होगी, दूसरी θ2 की। बाकी आपने RH1 निकालना है, H1 आपका 0 है, इस पर कैलकुलेट कीजिए आर की वैल्यू 4 × 0 + 1, तो फर्स्ट फैक्टर 0 हो गया और 1 का अंडर रूट विल रिमेन 1। पुट सेकंड पॉइंट, 4 × 2 is 8, 8 + 1 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 is 3। RH2 की वैल्यू हो गई 3। एवरेज रेट ऑफ चेंज हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा थीटा, इसको लिखोगे डेल्टा आर अपॉन डेल्टा थीटा। फॉर्मूला क्या बनेगा, आर θ2 माइनस आर θ1 अपॉन θ2 माइनस θ1। आर θ2 की वैल्यू है 3, आर θ1 की वैल्यू है 1 अपॉन 2 माइनस 0, ये θ2 है, ये θ1 है, 2 upon 2 answer is 1। और डेल्टा आर अपॉन डेल्टा क्यू इज, नहीं सॉरी, डेल्टा थीटा करें, क्यू नहीं, इसको थीटा रखें, इज 1। ओके, अब मैं ये क्वेश्चन 9 ले रहा हूँ आपकी की बुक का, देखिएगा। In exercise 7 to 14, use the method in example 3 to find the slope of the curve at the given point P and an equation of the tangent line at P। देखो एक इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी जब हमने एग्जाम्पल 3 आखिर में की थी ना, y = x² और पॉइंट था हमारा 2 4, तो उस पर हमने पहले टेंजेंट निकाला, स्लोप निकाला, स्लोप को ही आप क्या कहते हैं, m कहते हैं, m इज द स्लोप, वो मालूम कीजिए और उसके बाद इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन निकालेंगे। चलिए, कर्व की इक्वेशन दी हुई है उसने क्वेश्चन 9 में, y = x² - 2x - 3 and the point is 2 3, 2 - 3। These two informations are given to you, and this you have to calculate। In part A you have to find the slope at point 2, 3। चलिए देखिए क्या करते हैं। We begin with a secant line through P 2, -3 and Q कैसे आएगा, देखो x1 + h कहते थे, तो ये x1 है, इसमें प्लस h करेंगे,
और कॉमा एफ ऑफ दिस, इस पूरे फंक्शन में हमने एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है, ये है एफ एक्स 1 प्लस एच है और ये है एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एच। अब इसको यहां रखें और एच भी लगाते हैं साथ साथ, तो 2 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3 एज इट इज। ये सेकेंड पॉइंट आएगा। ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। मैंने कहा था ना थोड़ा सा आगे हम डिस्कस करेंगे एच, तो ये होगा x1 प्लस एच, ये हो गया 2 प्लस एच, और ये जो सेकंड पॉइंट होगा वो होगा आपका x1 प्लस एच, और फिर हम यहाँ पे पुट करेंगे y के अंदर, तो x1 प्लस एच रखा, स्क्वायर आया, फिर माइनस 2, x1 हमारा 2 है, 2 प्लस एच माइनस 3, ठीक है। अब आइए चलते हैं आगे। We write the slope of the secant line PQ and see what happens as Q approaches P। हमेशा टेंजेंट लाइन में बदल जाती है, secant line changes into tangent line। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या होगा, पहले ये वाला f of x2 वाला पॉइंट आ गया, माइनस जी f of x1, ये रख लें, f of x1 ये आएगा, ये x1 को यहाँ रखें, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 3, तो 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। ये f के कोऑर्डिनेट्स हो गए अपॉन h। जस्ट ओपन द स्क्वायर्स एंड द ब्रैकेट्स, 2 प्लस h को स्क्वायर खोलेंगे तो अब ये h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 4 यहाँ से आ गया, इसको खोलेगा माइनस 4 एंड माइनस 2h, फिर ये खोलेंगे तो ये तो 4 कट गया, प्लस 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4, ऑल द कांस्टेंट्स हैव गॉन। अब ऊपर आपके पास बचा h स्क्वायर और प्लस 4h में से 2h सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो प्लस का 2h डिवाइडेड बाई h, h कॉमन लीजिएगा, h से कैंसिल कर देंगे हम, तो h प्लस 2 बच जाएगा ब्रैकेट में, h प्लस 2 है, ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये सेकंड लाइन का स्लोप है, और व्हेन q अप्रोचेस p h अप्रोचेस 0 एंड द सेकंड लाइन स्लोप h प्लस 2 अप्रोचेस 2, h को हमने 0 रख दिया, तो ये हो गया हमारा slope of the tangent line, that is 2. 2 is the parabola slope। जब स्लोप मिल गया आपको तो पॉइंट हमारे पास क्या है 2,3, ये x1 है, ये y1 है, ठीक है ना, x1 y1, और m की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, दैट इज 2, ये m है। तो पुट दिस फॉर्मूला वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस y। स्लोप हमने भी कैलकुलेट किया, दैट इज 2, x1 की वैल्यू भी 2 है, इत्तेफाक से रख दी, और y1 है -3, मैंने इसलिए ब्रैकेट में माइनस रखा, आपको पता चले कि y1 इज -3, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये +3 हो जाएगा। इसको ओपन कीजिए, 2x - 4 एंड ब्रिंग ऑल द टर्म्स ऑन द राइट साइड एक्सेप्ट y, तो y विल बी इक्वल टू 2x +3, इधर आके -3 हो जाएगा, 4 माइनस का 4 और -3 विल बिकम -7, डन जी। ये तो हमने निकालना सीखा कि स्लोप ऑफ सेकंड लाइन निकाल के फिर हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन निकाल लेंगे, और वहां से पॉइंट और स्लोप को मिला के हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन। अब आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आप लोग अनम्यूट कीजिए अपने आप को, कैसे करेंगे अनम्यूट? हेलो, कहाँ है पार्टिसिपेंट्स? जी हेलो हेलो हेलो, यस सर, आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, अभी इनको सबको अनम्यूट करके पूछिए, अभी जो मैंने पूरी एक्सरसाइज कराई उसमें कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है?
Anybody wants to? जिसको क्वेश्चन पूछना है अनम्यूट करके पूछ ले। जी नहीं है, चलो उनकी मर्जी है। नहीं सर, किसी का नहीं आ रहा रिप्लाई आगे से। ओके चलिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ सबको हो गया अंडरस्टैंड। चलिए फिर आप इनको म्यूट कर दें अब आप, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। ये अभी कंट्रोल में रखो। हेलो हेलो दानिया, हेलो हेलो। यस सर। अभी इनको अभी ऐसे ही अनम्यूट कर लेते हैं। यस सर। मेरी आवाज सुनते रहे तो अच्छा है, और डिस्कस करते रहे, कुछ चीज साथ साथ पूछनी, साथ साथ पूछनी। सही है सर। और अगर कोई श्योर हो तो वहां से उसको कंट्रोल कर लेना। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट द लिमिट। अभी तक हमने तो एवरेज रेट ऑफ चेंज पढ़ा था, ठीक है। असल कहानी होगी आपकी लिमिट की और कंटिन्यूटी की। तो लिमिट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन सिंपल सी जो है, आसान। लिमिट इज ए पॉइंट और अ बाउंड्री दैट कैन नॉट बी क्रॉस्ड। लिख लें कहीं आप, लिमिट क्या होती है? इट इज अ पॉइंट और अ बाउंड्री दैट कैन नॉट बी क्रॉस्ड। उस जैसे कहते हैं ना, बी इन योर लिमिट्स, यानी लिमिट जो है उस हद से आगे नहीं जाना चाहिए, एक हद लगा दी जाती है कि सपोज एक्स इज अप्रोचिंग -2, बस इससे और आगे नहीं जाएगा। एक्स इज अप्रोचिंग 9, तो 9 से आगे नहीं जाएगा, ठीक है। -2 है तो पीछे नहीं जाएगा, अप्रोच करना है बस वहां तक। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस द लिमिट्स फ्रॉम ग्राफ, और ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, and there are so many other questions. आज आप समझ लीजिए इसको, how do we locate the limit from the graph, then we'll do some numerical problem, how to evaluate the values from the given expressions. So in this exercise 2.2 and question number 2 I'm taking, for the function y, f of t graphed here, find the following limits or explain why they do not exist. The figure is in front of you, and you have to evaluate the limit. That limit of f of the function t when t is approaching -2. In the part B, limit of f of t, t is approaching -1. In part C, limit of f t, t is approaching 0. And in D part, limit of f t, t is approaching -0.5. ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका कि इन पॉइंट्स पर आपने लिमिट के बारे में बताना है कि ये एग्जिस्ट कर रही है, और अगर नहीं कर रही है तो देन व्हाई नॉट इट इज एग्जिस्टिंग। इज माय वॉइस हर्ड टू एवरीवन? आवाज आ रही है सबको? स्टूडेंट्स हेलो, आवाज आ रही है नहीं आ रही? यस सर आ रही है। शाबाश। ये फिगर आपके सामने है, देखिएगा। हमने पहले ये एक्सिस ड्रॉ की, एक टी एक्सिस है जिसको हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखा है, फंक्शन ऑफ टी है ना, और इसने बता दिया एस ऑन द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। ये बनाया उसने फिगर, ये दिस फिगर हैज बीन गिवन टू यू। सो डिपेंडेंट वेरिएबल इज एस, ओके। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टी, याद रखिएगा सारी उम्र के लिए। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टेकन अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड डिपेंडेंट वेरिएबल is normally taken along the y-axis. जैसे y is a function of x, तो x होता है x-axis ये पर, और y की वैल्यू होती है वर्टिकल एक्सिस पे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आपका फंक्शन है s इक्वल टू f of t है, तो s will be taken on the vertical axis क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, and t will be taken along the horizontal axis because it is the independent variable. फिगर को गौर से देख लीजिए जरा सा, मैं आपको फिगर समझा देता हूँ। ये कर्व यहाँ से आ रहा है, एक्सिस को टच किया, यहाँ पे एक होल है, आगे आए यहाँ पे एक सॉलिड सर्कल है, फिर ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है या टच कर रहा है तो यहाँ पे भी एक होल है, इसके ऊपर एक सॉलिड सर्कल है, फिर ऊपर आए एक होल है, होल के बाद फिर ये फंक्शन यहाँ से यूं जा रहा है राइट साइड पर। अब मैं थोड़ी सी आपको और बता दूं बात कि होल पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है।
अब इसका फर्क और ये सॉलिड सर्कल का फर्क जब हम पढ़ेंगे ना कंटिन्यूटी, तो वहां मैं आपको बताऊंगा। अभी दोनों को मिक्स में कीजिए। ये एक सॉलिड पॉइंट है, जैसे लाइन के ऊपर कोई सा भी पॉइंट ले लें, एक सॉलिड पॉइंट, ये फंक्शन की वैल्यू, दिस इज द फंक्शन। सर बोलो। सर वो दानियाल को इन कर लें आप, उनका नेट चला गया था तो वो क्लास से बाहर हो गए, तो आप अब होस्ट हैं तो आप उनको कर लें। तो अब उसको कैसे ऐड कर लूं ये बताइए। सर वो मीटिंग को अनलॉक कर देना, जैसे आप किया था ना। तो अभी अनलॉक तो है ही, आप लोग सब लोग बातें नहीं कर रहे, है सर ना? हम तो क्लास में है ना, दानियाल नहीं है। तो उसको क्या करूं फिर मैं? ये बड़ा मसला। उसे इन कर दो। उसे इन कर लें क्लास में। हाँ, मुझे ये तरीका बताइए, मैं ये सब ड्रामेबाजियों में ना पढ़ता नहीं हूँ, मुझे इसलिए इन चीजों का पता नहीं है। सर या फिर किसी और को होस्ट बना दें। मैं सारा वक्त यही काम सर करता जैसे आपने सर होस्ट बनाया था ना। पार्टिसिपेंट के टॉप पे ना ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पर एडमिट कर लें दानियाल को। हूँ। किस चीज का ऑप्शन आ रहा है? अदिल मीटिंग लॉक हुई हुई है ना, अदिल मीटिंग लॉक हुई हुई है। अभी ये बताओ पार्टिसिपेंट पे क्या करूं? क्या करूं भाई, क्या बता रहा था पार्टिसिपेंट को? सर जैसे आप मुझे होस्ट बना, जैसे आपने दानियाल को होस्ट बनाया था ना, ऐसे मुझे होस्ट बना दें। मुझे अभी नए सिरे से बताओ क्या करना है। पार्टिसिपेंट की लिस्ट खोलो। आप मुझे होस्ट बना दें, जैसे आपने दानियाल को होस्ट बनाया था ना अभी, एक- आप मुझे बना दें अब होस्ट, ऐसे ही। तुम मेरी बात तो सुनो ना। मैं कह रहा हूँ कि अभी पार्टिसिपेंट की लिस्ट खोलूं, क्या करना है? सर सिक्योरिटी के ऑप्शन में जाएं, आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन दिख रहा है वहां पे आ जाओ। हाँ दिख रहा है। नीचे, देखिए सिक्योरिटी का ऑप्शन आ रहा होगा। हाँ, खोल दूं? सर सिक्योरिटी के ऑप्शन में जाके ना मीटिंग को अनलॉक कर दें, एक मिनट, वहां पे लिखा हो रहा होगा मीटिंग। सबर करो ना। सिक्योरिटी के ऑप्शन में जाए। अरे भाई, सिक्योरिटी का ऑपरेशन खोल दिया मैंने, ऑप्शन ऑफ। आस्ता आस्ता अब देखिए वहां पे मीटिंग आ रही है, वहां पे अनलॉक आ रहा है कहीं पे। एनेबल वेटिंग रूम है, इसको खोल दूं या लॉक मीटिंग करूं, क्या करूं? इसको हटा दूं? इसे अनलॉक कर दें। कर दिया, कर दिया कर ना? दिया। अब आपके पास दानियाल, अब दानियाल आएंगे ना आपके पास, तो अब आप उन्हें ऐड कर दीजिएगा, मैं सारा ठीक है। वही वहां पे कर। लिखा हुआ आएगा। वो बाहर निकला कैसे है ये बताओ? भाई अनलॉक होने के बाद वो खुद ही इन हो जाएंगे। और क्या, खुद हो जाएगा वो। हाँ ठीक है, वो खुद इन हो जाएगा। मुझे लगा शायद वो प्राइवेसी भी होती है ना, उसमें ऐड करते हैं, मुझे लगा शायद। हाँ सर, इन हो गया। आ ठीक गया है सर दानियाल। यस तुम आउट कैसे हुए थे ये बताओ? सर, वो नेट मेरा डिसेबल हो गया था तो वापस में आया था, तो आप होस्ट बन गए थे ना, मीटिंग लॉक ही थी तो इस वजह से। अब ये बड़ा मसला होगा ना, इस तरह से आउट होते रहे, इन होते रहे, तो फिर कितना टाइम हमारा इसी तरह जाया होता है। पता भी है तुम लोगों को कि मुझे कंप्यूटर की चीजें बहुत ज्यादा नहीं आती हैं। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। चलो अब हो गया। होस्ट की यस सर। राय संभाल ली है तुमने, ये दोबारा बनाना पड़ेगा तुम्हें होस्ट। सर होस्ट दोबारा बनाना पड़ेगा। अभी नहीं बनाऊंगा, अब 5-10 मिनट रह गए, अब अगले जो मीटिंग सही दोबारा है, बात करेंगे। ठीक है सर। चलिए, आज इतनी डिस्टरबेंस हो रही है, मैं जितना चाह रहा था तेज पढ़ाऊं उतना काम खराब हो रहा है। आओ, ओके, दिस इज द फिगर, दीज आर द लिमिट्स यू आर टू कैलकुलेट। सुन लो गौर से, ए पार्ट में बता रहा हूँ। वो पूछ रहे कि जो फंक्शन यहाँ बना हुआ है, फाइंड द फॉलोइंग लिमिट्स और एक्सप्लेन व्हाई डू नॉट एग्जिस्ट। इस तरह का कोई ना कोई सवाल आपके अगली असाइनमेंट, क्विज या कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लिहाजा बहुत गौर से सुनिए। अब देखो, मैंने कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रखे हैं, वो आप करिएगा खुद, एंड जो आपके सामने है उसको समझ लीजिए। एंड एनीबॉडी हु इज हैविंग एनी प्रॉब्लम राइट नाउ यू कैन आस्क। जैसे मैंने एक पार्ट में खत्म करता हूँ, नहीं समझ आए तो पूछो। आज पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा मुश्किल होगी, लेकिन जब बार बार आप करोगे ना रिपीटेडली, सो यू विल हैव अ ग्रिप ओवर दैट। ओके, टेकिंग दिस एफ ऑफ टी -2। देखो, आपने सिर्फ -2 पे अपने आप को कंसंट्रेट करना, बाकी सारे पॉइंट छोड़ जाए। -2 के बाद -1 भी है, 0 भी है, 1 भी है। Forget about all the other points. We are to concentrate only or at the point where t is equal to -2. Okay, you are looking at my cursor. This is t equal to -2. अब हम देखें क्या करते हैं। We will first find the left hand limit and the right hand limits as t approaches -2. तो अब हमने इस -2 के
पास पहुंचना है, लेकिन पहले हम लेफ्ट से चलेंगे ग्राफ के लिए, फिर हम राइट से आएंगे ग्राफ पे। ठीक है, इसको मैं कहूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। जब हम इस पॉइंट -2 पे चलेंगे, फिर हम राइट से जब ट्रेवल करते हुए आएंगे -2 को, तो ये राइट हैंड लिमिट कहलाती है। गॉट इट? हाउ टू फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट। अब नोट कीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिट f of x2 t टेंड्स टू -2। देखो हमने पहला सवाल आप देख रहे हैं, कर्सर को बना नोट की, टेंड्स टू -2। जब मैं इस -2 के ऊपर भी माइनस डालूंगा तो इसका मतलब होगा अप्रोचिंग -2 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और जब मैं इसके ऊपर प्लस डाल दूंगा तो इसका मतलब होगा अप्रोचिंग -2 फ्रॉम द राइट साइड। ये बात समझ में आई? क्या कहा मैंने? कौम जाग रही है, सो रही है? भाई बोलो। जी सर, पढ़ाई। अब देखो मैं कर रहा हूं, जब करूंगा तो एकदम लेफ्ट हैंड लिमिट, ये होगा लिमिट ऑफ टी अप्रोचिंग -2 फ्रॉम द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का सिंबल होगा माइनस, ऊपर डालें, इसके ऊपर लिखेंगे। अच्छा, ये माइनस तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, और ये माइनस शो करेगा टॉप पे कि ये हम अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट से। अब देखो ये लेफ्ट का ग्राफ है, ठीक है। यहाँ से चलेंगे 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 -2 पे पहुंच गए, तो y की वैल्यू क्या है? y का मतलब है s, ठीक है ना। s की वैल्यू क्या आ रही है? 0 ना, क्योंकि हम t एक्सिस पे ऐसा हमेशा क्या होता है? 0, जैसे x एक्सिस पे y 0 होता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? 0। अब हम इसी ग्राफ पर आएंगे -2 के लिए फ्रॉम द राइट साइड, तो लिखेंगे कैसे? राइट हैंड लिमिट, लिमिट ऑफ f t इक्वल टेंड्स टू -2, प्लस का मतलब होगा फ्रॉम द राइट साइड। अब मैं ग्राफ ये वाला फॉलो करूंगा, ये राइट से चलते 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 मैंने पहुंचना कहाँ है? -2 पे पहुंच गया। जब मैं -2 पे राइट से आया तो भी क्या वैल्यू आई? s की क्या वैल्यू आई? 0 आई, ठीक है ना। y एक्सिस पे वैल्यू क्या है? 0 ही है ना। ft का मतलब होता है ऑन द y एक्सिस की वैल्यू क्या है? वो 0 है। जब दोनों लिमिट्स बराबर हो गई तो हम कहेंगे यस लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। एज द लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट, सो द लिमिट एग्जिस्ट एंड लिमिट ऑफ ft t टेंडिंग टू -2 इज 0। आंसर ऑफ ये पार्ट। अभी देख लो, जब सारे पार्ट सीखोगे ना तो फिर समझ में आ जाएगा कहाँ लिमिट एग्जिस्ट करी कहाँ नहीं। फिर मुझसे अगर ये पार्ट भी नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो। नाउ कमिंग टू पार्ट बी, देखिए आप पहले क्वेश्चन में देख लीजिए, लिमिट ऑफ एफ टी टी टेंडिंग टू -1। अब ये हमारा टी टेंडिंग टू -1, ध्यान में रखिएगा कि पॉइंट हमारा अब क्या होगा? -1। बाकी सारे पॉइंट्स को भूल जाएं। अब हम -1 के लिए पहले हम लिमिट लेंगे फ्रॉम द लेफ्ट साइड, फिर हम लेंगे फ्रॉम द राइट साइड। देखिए, तो we find the left hand and right hand limits as t approaches -1. तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ टी टी अप्रोचेस -1, ये माइनस साइन जो ऊपर डाले इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब जरा चेक करो ग्राफ से। अब मैं ये लेफ्ट हैंड से ग्राफ हमारा ये आ रहा है, यहाँ पहुंचे हम, ये -1 कहीं भी आ गया ना, तो -1 ये ऊपर आ गया। -1 पे आप बताएं एस की वैल्यू क्या आ रही है? वो भी -1, ठीक है ना। -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है? y वैल्यू लेते हैं, y वैल्यू -1। अच्छा, और अब आप राइट हैंड से आएंगे -1 पे, तो राइट हैंड से ये ग्राफ आ रहा है, ये यहाँ पहुंचा, तो देखो ऊपर -1 आ गया, तो तब भी -1 आ रही है y की वैल्यू। दोनों सूत्रों में लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स आर -1। जब ये दोनों बराबर होंगे तो कहेंगे यस लिमिट एग्जिस्ट एंड आंसर इज टू बी -1। लेकिन अब हम ना माइनस डालेंगे इसके ऊपर और ना प्लस डालेंगे, सिर्फ लिखेंगे पॉइंट इज -1, लिमिट t टेंडिंग टू -1 f of t is equal to -1। ये हमारा दोनों का जो आंसर है वही लिखेंगे। और अगर ये आंसर डिफरेंट हो गए तो हम कहेंगे नो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए अभी आपको सामने आ रहा है केस 3 सी पार्ट में कह रहा है लिमिट ऑफ एफ टी टी इज अप्रोचिंग 0 हमारा ये पॉइंट ओरिजिन, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में कैसे लिखूंगा? लिमिट टी अप्रोचेस 0, ऊपर डालेंगे माइनस,
और राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट सब कुछ लिखेंगे और t अप्रोचेस 0 प्लस, ओके, ऊपर डाल देंगे प्लस। अब निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब देखिए ये 0 के लिए लेफ्ट से अगर आप ग्राफ को फॉलो करेंगे चलते 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 ये ग्राफ यहाँ पहुंचा आपको लेके, ठीक है। सर ये फिर कोई बंदा आ गया, नाम चेंज कर दिया। निकालो इसको। सर आप निकाल दिया, होस्ट बनाना पड़ेगा। सर ये कोई अपनी क्लास का ये जो कर रहा है हरकतें। टाइम ज़ाया हो जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने फेल तो होना ही होना है, बदतमीज। सर आप ना एक न्यू मीटिंग बनाइएगा नेक्स्ट क्लास से, मतलब जो अपकमिंग वीक होगा ना उसमें न्यू मीटिंग बना लें, मीटिंग चेंज कर दें और उसमें प्राइवेसी लगाएं कि आप खुद एडमिट करेंगे उस बंदे को, उसकी नाम और आईडी होगी, ठीक है, उसके हिसाब से अटेंडेंस हो जाएगी। अगर कोई नेक्स्ट अगर दूसरा बंदा होगा ना फिर वो आउट हो जाएगा, फिर इस तरह अपनी ही क्लास के होंगे। अगर फिर जो बंदा कोई भी हरकत करेगा ना तो वो अपनी क्लास का ही होगा इस तरह। तो मेरी बात सुनो, मुझे जो तुम ये इतने लंबे लंबे काम बता रहे हो, ये करो वो करो, तो उसके अंदर वो वेटिंग रूम बनाना होता है ना? सर हम बना के दे देंगे आपको आईडी, ये ठीक है। फिर भाई रहने दो, नेक्स्ट क्लास में देख लेना वरना आधा घंटा और ज़ाया हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास की ही बात कर रहा हूँ मैं। चलो अभी छोड़ो ना इस डिस्कशन को, आइंदा बना लेना जो बनाना। इसको साकिब, इसको दानियाल को बता दो, ही विल मेक एवरीथिंग। दानियल को पता लग गया है सर, पता लग गया, बस उसको ये चाहिए कि बना। मैंने तो आप लोग को पहले ही से कहा हुआ है कि ऐसे जो डिसग्रंटेड लोग हैं इनको कंट्रोल करने के लिए डू ऑल द मेजर्स। अब आपने कहा उसको होस्ट बनाने, उसको बनाया तो अब वो आउट हो जाता है थोड़ी थोड़ी देर बाद, क्या करें। चलिए अभी हमारी मीटिंग भी खत्म हो रही है, फॉरगेट अबाउट दैट। अच्छा चलिए बेटा ये सुनने देखिए, मैं क्वेश्चन खत्म कर दूं। देखो अब हम 0 ही है हमारे पास, ठीक है। लेफ्ट से हमारा क्रॉव लेके यहाँ पहुंच रहा है हमें और ऊपर 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट व्हेन t is tending to 0 from the left side, ये आंसर आ रहा है हमारा -1। अब राइट साइड से देखो ये कर्व लेके आ रहा है हमें, यहाँ पे देखो 0 नीचे आ रहा है ना, 0 नीचे या ऊपर कहीं भी होगा, ये राइट की लिमिट। तो यहाँ पे लिमिट क्या आ रही है हमारी 1। तो राइट साइड यानी प्लस के लिए आंसर आ रहा है 1 और 0 माइनस के लिए आंसर आ रहा है हमारा -1। तो दोनों आंसर्स मुख्तलिफ हो गए। ये ऐसी देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट t f of t approaching from the left side, answer is -1, and right hand limit t approaching